मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, सीधे लेकर चलते हैं उनके पास और सुनिए क्या कह रही हैं बंगाल की मुख्यमंत्री। সেই মিটিং থেকে কথা বলে বেরোনোর পরে এটা হচ্ছে। আমি প্রথমেই বলি, আমি সর্বভারতীয় ইলেকশন কমিশনকে আমার অনেক অনেক অভিনন্দন, ধন্যবাদ এবং মোবারকবাদ জানাচ্ছি, বাধাই জানাচ্ছি যে তারা 5টা রাজ্যের ইলেকশন অ্যানাউন্স করেছে। मैं सबसे पहले इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद, मुबारकबाद दोनों कहना चाहूंगी उनको। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धन्यवाद देते हुए, अभिनंदन करते हुए चुनाव आयोग का। तमिलनाडु সম্ভবত 240-এর মতো সিট, 34 তাতে সেখানে ওয়ান ডে ইলেকশন। কেরালায় সিপিএম গভর্নমেন্ট আছে, ওয়ান ডে ইলেকশন। বাংলায় 294টা সিট, 8টা ফেজে ইলেকশন। কেন? কাকে সুবিধা করে দেওয়ার জন্য? একটু তো রেশনাল থাকবে ইলেকশন কমিশন। ওই ওয়ান election commission will have a highest regards. Now, like election commission, the important body, if they don't give justice to the state and the people, then where the people will go? Now, whatever I came to know from BJP party sources, whatever BJP have decided, as per BJP requisition, even I am really sorry to say that they cannot trust even West Bengal, the district also. I am really sorry. My question would be to Election Commission. I welcome your decision, but tell me why half of the district election every day? Why don't you do it? There must be some continuous the election, so that from post mobilization to election machinery everything is going to be together. কিন্তু আপনারা কি করেছেন? सेकेंड मार्च যেটা सेकेंड ममता बनर्जी सीधा सवाल कर रही है चुनाव आयोग पर। अब कह रही है 8 फेज में ये चुनाव क्यों करवाए जा रहे हैं, इसका सीधा फायदा क्यों और किसको मिलेगा, ये सब समझ में आ रहा है। इस फैसले के पीछे हो सकता है किसी की राजनीतिक मंशा भी हो और हो सकता है राजनीतिक पार्टी का हाथ भी हो। क्या सोचकर और किन सवालों के आधार पर 8 चरणों में ये चुनाव करवाए जा रहे हैं, ये सवाल उठाना सीधा राज्य सरकार पर मुनासिब नहीं है। নোটিফিকেশন যেটা হচ্ছে 1 এপ্রিল, বাঁকুড়া পার্ট 2, पश्चिम मिदनापुर पार्ट 2। सीधा सवाल और सीधा आरोप बीजेपी के ऊपर तीखे वारों और तीखे बाणों से और तीखे शब्दों का प्रयोग करके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधा सवाल उठाया है इस बार बीजेपी पर, और ये भी कहा कि चुनाव आयोग ने इन तारीखों को किन शिकायतों के आधार पर और किसे फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। हम ये जानते हैं कि चुनाव आयोग केंद्र के अधीन नहीं है, लेकिन एक ऐसी संस्था है जिस पर सबका भरोसा है। আপনাদের হেরে ভূত করে দেব। খেলা হবে 8টা ফেজে, হারিয়ে ভূত করে দেবো। তার কারণ আমরা গ্রাসরুটের লোক। আপনি জেলাকে ভাঙছেন, বিজেপি আপনারা জেলাকে ভাঙছেন, আপনারা মা বোনদের ভাঙছেন, অসম্মান করছেন, আপনারা ভাই বোনদের ভাঙছেন, আপনারা হিন্দু মুসলিম ভাঙছেন, আপনারা आप ही पूछ लीजिए, आप ही समझ लीजिए। हम ये जानते हैं इसके पीछे मंशा क्या है, इसके पीछे कारण क्या है। इन सारे सवालों का जवाब जनता देगी इस बार मतदान के जरिए। কিন্তু মনে রেখে দেবেন, বাংলার নিজের ঘরের মেয়ে মমতা ব্যানার্জি, আমি একটা কথা আপনাদের বলি, বাংলাটাকে কিন্তু আমি খুব ভালো চিনি। আমি গত 40 বছর ধরে আমার ছাত্র রাজনীতি থেকে আমি কিন্তু বাংলার বর্ডার টু বর্ডার চিনি,
টু জেলা চিনি, অ্যাসেম্বলি টু অ্যাসেম্বলি চিনি। কাজে আপনারা যা করবেন আপনাদের সব চক্রান্ত আমরা ভেঙে দেবো। আপনাদের এর উত্তর বাংলাকে অসম্মান করার আমি মনে করি বাংলার মানুষ দেবে। বহিরাগত গুন্ডারা বাংলা শাসন করবে না, বাংলার মানুষ বাংলা শাসন করবে। আর আমি ইলেকশন কমিশনের কাছে রিকোয়েস্ট করব, with my humble regards, बंगाल की जनता ही इस बात का जवाब देगी। आप कितनी भी तारीखें ले आइए, आप कितने भी चरण ले आइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बंगाल की जनता जानती है कि उन्हें कब क्या करना है और कैसे किसको जवाब देना है। इंतजार है उन्हें भी इसका जवाब देने का। sorry and soft, but we welcome your decision because we respect all of you the constitutional position. But please see, same man is being reputed as a ममता बनर्जी ने आपत्ति जताई है 8 चरणों में बंगाल में चुनाव कराने पर। चुनाव आयोग ने जो फैसले लिए हैं उसका आधार क्या है, इस पर भी सवाल उठाए हैं और ये भी पूछा है कि आखिरकार क्या कारण है जो इस तरह से बंगाल को 294 सीटों के लिए 8 चरणों में मतदान करना पड़ेगा। Central government cannot misuse their own power for a state election. And if you do it like this, if you allow it like this, then there will be a big blunder. And then you have to face the music. We are not. We the common people, we will fight out. आपको बता दें पिछले कुछ दिनों से चुनावी सरगर्मियों में एक ही शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, 2 शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, ये कहकर खैला हबे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिर एक बार कह दिया कि कोई बात नहीं, खैला हबे। और इस बार बंगाल में 8 चरणों में खेल होगा। एक जिले में 2 बार में चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं, उसे 2 हिस्सों में बांटकर क्यों चुनाव करवाया जा रहा है, इस पर भी सवाल उठाया है। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ है, हालांकि एक चरण को 2 भागों में जरूर बांटा गया था पिछली बार 2016 में, जिसका मतलब है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया में, जहां पर बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा लेफ्ट यानी कि नक्सली प्रभावित इलाकों में इस तरह की बातें देखी गई थी 2016 में, 2011 में भी। और अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आवाज उठा रही हैं चुनाव आयोग के खिलाफ, ये कहते हुए कि इस बार खेला में 8 चरणों में खेल होगा और जनता इसका सही समय पर सटीक जवाब देगी। নেতা আছে নিয়ে আসুন। আমাদের বাংলায় একটা কথা আছে, নেতা আর নেতা, এটা বাংলার কথা। আপনার যত নেতা अमित शाह, नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे असम में चुनावों के बाद, इसलिए ऐसी तारीखें रखी गई हैं। साथ ही ये भी सवाल उठाया है कि दक्षिण 24 परगना में हम लोग ज्यादा शक्तिशाली हैं, इसलिए 3 चरणों में इस जिले में चुनाव करवाए जा रहे हैं। ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक जिला को 2 पार्ट में चुनाव में क्यों बांटा जा रहा है। बंगाल में बंगाल के लोग बंगाली ही शासन करेंगे। बड़ा सवाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक के बाद एक उठा रही हैं चुनाव आयोग के खिलाफ, ये कहकर कि जो ये सवाल और ये जो फैसले लिए गए हैं इनका आधार क्या है, इनकी आधारशिला क्या है। इस तरह के फैसले अगर लिए गए हैं तो इसके पीछे राजनीतिक हथकंडा होने की पूरी संभावना है और है भी। And we are the winners. We are the street fighters, but we are the winners. We can show you the result. And Mr. Narendra Modi and Amit Shah, please be prepared. Whatever you will destroy, you will try to destroy Bengal. Wait for 2024 election. We will not let you go alone. We will fight the battle together. Thank you so much. I think আজকে আমার এটুকুই বলার ছিল। আশা করি I covered every point. লাভ নেই, আজকে যা বলার বলে দিয়েছি, কখনো কখনো তো করো না, সবই তো বলে দিয়েছি। এই শোনো, তুমি এসব কথা বলো না প্লিজ, আমার পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে তুমি এগুলো বলবে না। देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बहुत ही तल्ख अंदाज में आपत्ति जताते हुए, बार बार सवाल उठाते हुए कि अगर 8 चरणों में चुनाव हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे क्या मंशा है। 3 बड़े सवाल उठा दिए कि अगर 8 चरणों में हो रहा है तो इसका फायदा किसको होगा, इसके पीछे मंशा क्या है। दूसरा बड़ा सवाल, असम में पहली बार पहले 3 फेज में चरण में चुनाव हो जाएंगे, इसलिए क्योंकि जिससे बीजेपी के बड़े बड़े नेता पहले असम में कैंपेनिंग कर लें और उसके बाद बाकी 5 फेज में बंगाल में आसानी से कैंपेन कर सकें। जिन जिलों में तृणमूल कांग्रेस इस समय सबसे ज्यादा अपनी बखत रखती है और सबसे ज्यादा उसकी पैठ है, उन्हीं इलाकों में बार बार तोड़
होकर चुनाव कराया जा रहा है, 2 भागों में चुनाव कराया जा रहा है, ये बड़ा सवाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। इसके पहले 7 फेज में चुनाव हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि 2011 में भी कुछ इतनी ही संख्या थी फेजेस की जब वो पहली बार सत्ता में आई, 2016 में जब दोबारा सत्ता में आई। लेकिन आज जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, 8 फेज में सवाल क्यों, सीधा इशारा बीजेपी की ओर और चुनाव आयोग के किरदार पर, यह कहते हुए एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।